उपस्थित जनसमूह प्रसन्न है, आह्लादित है और प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन की। माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे परिवारजन, என்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களே, आज वो शुभ घड़ी है कि हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय இன்று के नारे நாட்டின் लगाने சுதந்திரத்திற்காக போராடி உயிர் தியாகம் செய்த வீரர்களையும் आजादी के दीवानों தூக்கு மேடையில் உயிர் நீத்த தியாகிகளையும் का ये पर्व है, நினைவு கூர்ந்து அவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்துகின்ற நாள் இது. पर्व है। आजादी के दीवानों ने आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए இந்த सौभाग्य வீரர்கள் இன்றைய தினம் இந்த சுதந்திர பெருவிழாவை கொண்டாடுகின்ற நேரத்திலே சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்கின்ற உரிமையை நமக்கு பெற்று தந்திருக்கிறார்கள். आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के இன்று साथ நாட்டை பாதுகாக்கவும் நாட்டை வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு செல்லவும் பலர் பணிபுரிகிறார்கள். हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, நமது இளைஞர்களின் கனவுகளாகட்டும், நமது மகளிரின் स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, நாட்டு முன்னேற்றத்தில் ஆற்றுகின்ற பங்காகட்டும், उसकी श्रद्धा, தலித்துகளாகட்டும், பின்தங்கிய வகுப்பை சேர்ந்தவர்களாகட்டும், मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन இன்று करता हूं। நான் இவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மரியாதை கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். प्यारे देशवासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली இந்த जा रही வருடம் ஏன் கடந்த சில வருடங்களாகவே இயற்கை பேரிடர்களால் நாம் மிகவும் துன்பத்திற்கு உள்ளாகி இருக்கிறோம். अपने परिवारजन खोए, பலர் தங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களை இழந்திருக்கிறார்கள். संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। இயற்கை பேரிடர்களில் உயிரிழந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய மன வேதனையை நான் அர்ப்பணித்துக் கொள்கிறேன். इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। அவர்கள் அனைவரின் துணையாக நான் இந்த துயரமான நிகழ்விலே இருப்பேன் என்று உறுதி கூறுகிறேன். आजादी के पहले के वो दिन याद करें, सैकड़ों साल की गुलामी, हर कालखंड संघर्ष का रहा। युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, उन्होंने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे, अविरत जंग लड़ते रहे। इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम जिसको हम याद करते हैं, उसके पूर्व भी
हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था। 1857 முதல் சுதந்திர போராட்டம் நமது நாட்டிலே நடந்து வருகிறது. அதற்கு முன்னால் கூட பல்வேறு பழங்குடியினர் இந்த சுதந்திரத்திற்காக போராடி இருக்கிறார்கள். जुल्मी शासक अपरंपार यातनाएं सामान्य से सामान्य मानवीयों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है. उसके बावजूद भी மக்கள் மீது அவிழ்த்துவிடப்பட்ட அடக்குமுறை, சாதாரண மக்களின் மன உறுதியை உடைக்கின்ற பல்வேறு திட்டங்கள், இவற்றையெல்லாம் மீறி அவர்கள் சுதந்திரத்திற்காக போராடினார்கள். वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे. एक ही स्वर था, वंदे मातरम. இவற்றையெல்லாம் மீறி அவர்கள் அந்த சிறப்பை செய்து காட்டினார்கள், தீவிரமாக போராடினார்கள். அவர்கள் மனதிலே இருந்ததெல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான், தாய் மண்ணே வணக்கம் என்பதுதான். हमारे पूर्वज थे. सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके அன்றிருந்த 40 கோடி மக்கள் உலகின் மிக பெரிய பேரரசினை இந்தியாவிலிருந்து அகற்றி சாதனை செய்தார்கள். अगर हमारे पूर्वज जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है. நம்முடைய அந்த முன்னோர்களின் ரத்தம் நம் உடலிலே பாய்கிறது. இன்று நாம் 140 கோடி மக்கள் இருக்கிறோம். अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते, 40 கோடி மக்கள் சுதந்திரம் பெற்றே தீருவோம் என்ற முனைப்பிலே சுதந்திரம் பெற்று தந்தார்கள் என்றால் 140 கோடி இருக்கின்ற இன்றைய மக்கள், என்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள், तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र, இலக்கு நிர்ணயத்தை கொண்டு செயல்பட்டார்கள் என்றால் நமக்கு முன்னால் சவால்கள் எத்தனை இருந்தாலும் அவற்றையெல்லாம் வெற்றி கொண்டு पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना நாம் ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த பாரதத்தை 2047 உருவாக்க இயலும். लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं. अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत 40 கோடி மக்கள் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி தர முடியும் என்றால் அதே பாவனையோடு இன்றைய 140 கோடி மக்கள் இந்தியாவை வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக ஆக்க முடியும். देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे और आजादी मिली थी. आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का. अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला सकती है, तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता நாட்டிற்காக உயிரை விட கூட भी बना सकती है. தயாராகின்ற மக்களை சுதந்திர போராட்டம் உருவாக்கும் என்றால் இன்று நாட்டை வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு செல்வதற்காக நாம் வாழும் அந்த विकसित भारत லட்சியத்தை நாம் மேற்கொள்ள முடியாதா? इस तरफ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है. வளர்ச்சி அடைந்த பாரதம் என்பது வெறும் கோஷம் மட்டுமல்ல, இதற்கு பின்னால் கடுமையான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने
विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव நான் இந்த நாட்டு மக்களிடம் இருந்து வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தை உருவாக்குவதற்காக யோஜனைகளை கேட்டிருந்தேன். ஆனால் அதற்கு கோடிக்கணக்கான மக்கள் தங்களுடைய எண்ணங்களை என்னோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். उसमें झलकता है. युवा हो, बुजुर्ग हो, गांव के लोग हो, शहर के लोग हो, किसान हो, இளைஞர்கள், முதியவர்கள், கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், நகரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், आदिवासी हो, விவசாயிகள், ஆதிவாசிகள் என அனைவரும் தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார்கள். शहरों में रहने वाले लोग हैं. हर किसी ने 2047 में जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा तब तक विकसित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिए. 2047ஆம் ஆண்டு தன்னுடைய நூற்றாண்டை, சுதந்திர தினத்தின் நூற்றாண்டை கொண்டாடும் போது நாடு வளர்ச்சி அடைவதற்கு தேவையான யோசனைகளை இவர்கள் அனைவரும் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். कि दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा. 2047 विकसित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने का सुझाव दिया. 2047 कुछ लोगों ने இந்தியாவை भारत की हमारी यूनिवर्सिटी உற்பத்தி ग्लोबल உலக உற்பத்தி மையமாக மாற்றுவதற்கான யோசனையை தெரிவித்திருக்கிறார்கள். कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमारा स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए. कुछ लोगों ने सुझाव दिया சுதந்திரமடைந்து 75 ஆண்டுகள் கழிந்த பிறகு நம்முடைய जीवन के हर क्षेत्र में ஊடகங்கள் உலக அளவில் தரமுடையதாக மாற வேண்டாமா என்று சிலர் கேட்டிருக்கிறார்கள். இளைஞர்கள் திறனுடையவர்களாக மாற வேண்டும் என்று சிலர் சொல்லியிருக்கிறார்கள். उस सुपर फूड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुंचाना है. हमें विश्व के पोषण को भी बल देना है. நம் நாட்டில் உற்பத்தியாகும் சூப்பர் ஃபுட் என்பதை உலகில் உள்ள அனைத்து உணவு மேதைக்கும் நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று சிலர் சொல்லி இருக்கிறார்கள். अनेक इकाइयां हैं, उन सब में गवर्नेंस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है. कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके प्रति चिंता जाहिर की और ये भी कहा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है. நீதி வழங்கும் அமைப்பிலே பல सिटीज बनाने की மாற்றங்கள் வர வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். किसी ने बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाओं के बीच शासन प्रशासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभियान चलाने का सुझाव दिया. बहुत सारे लोगों ने यह सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए. விண்வெளியில் பாரதத்தின் விண்வெளி நிலையம் ஆய வேண்டும் என்பதை பற்றியும் ஆசை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். दुनिया जब आज होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ जा रही है तब हमें भारत की पारंपरिक औषधियां और वेलनेस हब के रूप में भारत को विकसित करना चाहिए. कोई कहते हैं कि अब देर नहीं होनी चाहिए. भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहिए. இந்தியா மிக விரைவில் உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக மாற வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். कि मेरे देशवासियों ने सुझाव दिए, मेरे देश के सामान्य नागरिक ने ये सुझाव हमें दिए हैं. இந்த நாட்டின் சாதாரண மனிதர்கள் இப்படிப்பட்ட யோசனைகளை நமக்கு தெரிவித்திருக்கிறார்கள். विशाल सोच हो, देशवासियों के इतने बड़े सपने हो, देशवासियों की इन बातों में जब संकल्प झलकते हो तब हमारे भीतर एक नया संकल्प दृढ़ बन जाता है. हमारे मन में आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है. நாட்டில் உள்ள மக்களின் மனதிலே இத்தகைய லட்சியங்கள் இருக்கும்போது நம்முடைய லட்சியமும் வலிமையாக உறுதி பெறுகிறது. ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है. ये विश्वास लंबे कालखंड के परिश्रम की पैदावार है और इसलिए देश का सामान्य मानव याद करता है जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गांवों में
समय सीमा में बिजली पहुंचाएंगे और वो काम हो जाता है। செங்கோட்டையின் கொத்தளத்திலிருந்து இந்தியாவின் அனைத்து 18,000 கிராமங்களுக்கு மின்சாரம் வழங்கப்படும் என்று உறுதியளிக்கப்படும் போது அது செயல்படுத்தப்படும். 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंच जाती है तब सामान्य मानव 2.5 கோடி வீடுகளுக்கு மின்சாரம் கொண்டு செலுத்தப்படும் என்று சொல்லப்படும் போது அவ்வாறு அது நடக்கிறது. अग्रिम हरोर पंक्ति में बैठे हुए लोग हो, गांव के लोग हो, गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो, छोटे छोटे बच्चे हो, हर परिवार के अंदर स्वच्छता का वातावरण बन जाए, स्वच्छता की चर्चा हो, स्वच्छता के संदर्भ में एक दूसरे को रोक टोकने का निरंतर प्रयास चलता रहे। मैं समझता हूं कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिबिंब है. நாடு சுத்தமாக இருக்க வேண்டும், நம்முடைய குடியிருப்பு பகுதி சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் உருவாகும் போது பாரதம் சுத்தமான பாரதமாக மாறுகிறது. हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे. जल जीवन मिशन के तहत इतने कम समय में नए 12 करोड़ परिवारों को ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் மூலம் குறுகிய கால அளவிலே 12 கோடி மக்கள் இல்லத்திற்கு குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. हमारे कौन लोग वंचित थे इन व्यवस्थाओं से, कौन पीछे रह गए थे? समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीते थे. मेरे दलित, मेरे पीड़ित, मेरे शोषित, मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे गरीब भाई बहन, मेरे झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाले लोग, वही तो इन चीजों के अभाव में जी रहे थे. हमने अनेक ऐसे प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास किया और उसका परिणाम हमारे इन सारे समाज के बंधुओं को मिला है. हमने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया. आज मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल ने अर्थतंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया. உள்ளூர் பொருட்களுக்கு குரல் கொடுப்போம் என்ற மந்திரத்தை மக்களிடத்திலே வழங்கி இருக்கிறோம். वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का माहौल बना है. अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कैसे हो, வனங்களில் இருந்து வருகின்ற உற்பத்தி பொருட்களை விற்பதற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்திருக்கிறோம். G20 समूह के देशों ने जितना किया है उससे ज्यादा भारत ने किया है. और भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए हमने काम किया है. साथियों, देश गर्व करता है आज जब फिनटेक की எரிசக்தி துறையில் இந்தியா சிறப்பான பணியாற்றி வருகிறது. உலக வெப்பமயமாதலை தடுப்பதற்கான முயற்சிகளை இந்த எரிசக்தி துறையில் பாரதம் மேற்கொண்டிருக்கிறது. विश्व में सबसे तेज गति से करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ. यही देश हैं जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे. जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की பயங்கரவாதிகள் நம்மளை தாக்கிவிட்டு தப்பி ஓடும்போது நம்முடைய நாட்டின் ராணுவம் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் நடவடிக்கை எடுக்கிறது. गर्व से भर जाता है. और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है. இந்த விஷயங்களால் இன்று 140 கோடி இந்தியர்களின் மனதும் கர்வத்தால் விம்முகிறது. एक सुविचारित प्रयास हुआ है. रिफॉर्म की परंपरा को सामर्थ्य दिया गया है. மாற்றங்களுக்கான அந்த பாரம்பரியத்திற்கு ஒரு राजनीतिक नेतृत्व की संकल्प शक्ति हो, दृढ़ विश्वास हो, जब सरकारी मशीनरी उसको लागू करने के लिए समर्पण भाव से जुट जाती है और जब देश के हर नागरिक उस सपने को पूरा करने के लिए, जन भागीदारी करने के लिए, जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आता है, तब हमें निश्चित परिणाम मिलता ही रहता है. நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு குடிமகனும் முயற்சி மேற்கொள்ளும் போது அதற்கான முடிவு எப்போதுமே சிறப்பானதாக தான் இருக்கும். समय बिताया है जब होती है, चलती है, अरे यार ये तो चलेगा, अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है, अरे मामला है अगली पीढ़ी दिखेगी, अरे हमको मौका मिला है यार मौज कर लो.
आगे वाला आगे का जाने, हमें क्या कर रहा है, हम अपना समय निकाल दें। अरे नया करने जाओगे कोई बवाल उठ जाए, पता नहीं क्यों देश में स्टेटस को का माहौल बन गया था। जो है उसी से गुजारा कर लो, यही का माहौल बन गया था। இருக்கின்ற நிலை தொடரட்டும், முன்னேறுபவர்கள் முன்னேறட்டும், நாம் ஏழைகளாகவே இப்படியே தொடர்வோம் என்கின்ற அந்த நிலை நீண்ட காலமாக இங்கே இருந்தது. அதை நாங்கள் மாற்றி இருக்கிறோம். हमें विश्वास से भरना था और हमने उस दिशा में प्रयास किया। कई लोग तो कहते थे अरे भाई अगली पीढ़ी के लिए काम हम अभी से क्यों करें, हम तो आज का देखें। लेकिन देश का सामान्य नागरिक ये नहीं चाहता, वो बदलाव के इंतजार में था, वो बदलाव चाहता था, उसकी ललक थी, लेकिन उसके सपनों को किसी ने तवज्जो नहीं दी, उसकी आशा आकांक्षाओं को अपेक्षाओं को तवज्जो नहीं दी गई और उसके कारण वो मुसीबतों को झेलते हुए गुजारा करता रहा, वो रिफॉर्म्स का इंतजार करता रहा। ஆனால் நாட்டில் உள்ள ஏழை எளிய மக்கள் மாற்றங்களை விரும்பினார்கள், மாற்றங்களுக்காக காத்திருந்தார்கள். बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हमारे वंचित लोग हो, हमारी बढ़ती जाती शहरी आबादी हो, हमारे नौजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांक्षाएं हो, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने चुना। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। மாற்றங்களை கொண்டு வருவதில் எங்களுக்கு இருக்கின்ற உறுதி வெறும் காகிதத்தில் எழுதி வைப்பது மட்டுமல்ல, 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। நாட்டிற்கு ஒரு வலிமை சேர்ப்பதற்காக நாங்கள் மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறோம். रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोथ की ब्लूप्रिंट बनी हुई है। ये हमारा रिफॉर्म, ये ग्रोथ, ये बदलाव, ये सिर्फ डिबेट क्लब के लिए, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के लिए, एक्सपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। साथियों, हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं किया है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुणा करके नहीं होते हैं। செய்கின்ற एक ही संकल्प, மாற்றங்கள் கொண்டு வருகின்ற மாற்றங்கள் எல்லாம் அரசியலோடு சம்பந்தப்பட்டது அல்ல. राष्ट्रहित सुप्रीम, ये मेरा भारत महान बने, என்னுடைய நாடு நல்ல நாடாக மாற வேண்டும், வளர்ச்சியடைய வேண்டும் என்பதற்காக செய்கின்ற பணிகள். एक लंबा परिवेश है, अगर मैं उसकी चर्चा में चला जाऊंगा तो शायद घंटों निकल जाएंगे, लेकिन मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बैंकिंग क्षेत्र में जो रिफॉर्म हुआ, आप सोचिए बैंकिंग क्षेत्र का क्या हाल था, न विकास होता था, न विस्तार होता था, न विश्वास बढ़ता था। வங்கித்துறையில் நாங்கள் செய்திருக்கிற மாற்றத்தை ஒரு உதாரணமாக நான் சொல்லுவேன். जिस प्रकार की कारनामे चले उसके कारण हमारे बैंक संकटों से गुजर रहे थे। हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए अनेक विध रिफॉर्म्स किए और आज उसका कारण हमारी बैंक विश्व में जो इन्हीं गुनी मजबूत बैंक के हैं उसमें भारत இன்று நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்ற மாற்றங்கள் காரணமாக இந்தியாவில் உள்ள வங்கிகள் உலகத்தில் உள்ள முக்கியமான வங்கிகளில் जब बैंक ஒன்றாக இருக்கின்றன. जब सामान्य खास करके मध्यम वर्ग के परिवार की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने की सबसे बड़ी ताकत बैंकिंग सेक्टर में होती है। अगर उसको होम लोन चाहिए, उसको व्हीकल का लोन चाहिए, मेरे किसान को ट्रैक्टर के लिए लोन चाहिए, मेरे नौजवानों को स्टार्टअप के लिए लोन चाहिए, मेरे नौजवानों को कभी पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, किसी को विदेश जाने के लिए लोन चाहिए, ये सारी बातें उसे संभव होती है। मुझे तो खुशी है कि मेरे पशुपालक भी, मेरे मछली पालन करने वाले भाई बहन भी आज बैंकों से लाभ ले रहे हैं। मुझे खुशी है मेरे रेहड़ी पटरी वाले लाखों भाई बहन आज बैंक से साथ जुड़ करके अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं और विकास की दिशा में वो भागीदार बन रहे हैं। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्योग के लिए तो बैंक एक सबसे बड़ी सहायक होती है।
उसको रोजमर्रा पैसों की जरूरत होती है अपने नित्य मर्जी पर प्रगति के लिए, और उस काम को हमारी मजबूत बैंकों के कारण संभव हुआ है। साथियों, दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी तो मिली, लेकिन लोगों को एक प्रकार से माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। सरकार के पास मांगते रहो, सरकार के पास हाथ फैलाते रहो, किसी की सिफारिश के लिए रास्ते खोजते रहो, वही कल्चर डेवलप हुआ था। आज हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार सब खुद लाभार्थी हितार्थी के पास जाती है। आज सरकार खुद उसके घर நம்முடைய நாட்டின் அரசு சிபாரிசுகளால் நடத்தப்பட்டு வந்தது. ஆனால் இன்று அப்படியல்ல. பயனாளிகளுடைய வீடுகளுக்கே நேரடியாக அரசு செல்லுகிறது. विकास के नए आयामों को चर करने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। आज सरकार खुद नौजवान के स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेक कदम उठा रही है। இளைஞர்களின் திறன் மேம்பாட்டுக்காக பல்வேறு விதமான முயற்சிகளை அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. प्रतिबद्ध है और हम इसी के द्वारा देश में प्रगति की राह को चुनना चाहते हैं। இதன் வழியாக நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான பாதையை நாம் देश में नई व्यवस्थाएं बन रही है। देश को आगे ले जाने के लिए अनेक वित्त नीतियों को, अनेक वित्त पॉलिसीज को निरंतर बनाया जाए और नए सिस्टम पर देश का भरोसा भी बढ़ता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है। आज जो 20-25 साल का नौजवान है, जो 10 साल पहले जब 12-15 साल की उम्र का नौजवान था, उसने अपनी आंखों के सामने ये बदलाव देखा है। இன்று 25 வயதுடைய ஒரு இளைஞன் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக இந்த மாற்றம் எப்படி நிகழ்ந்திருக்கிறது என்பதை கண்கூடாக பார்த்திருக்கிறார்கள். में एक नई चेतना जगी है और वही देश का एक नया सामर्थ्य के रूप में उभरना है। आज विश्व भर में भारत की साख बढ़ी है, भारत के प्रति देखने का नजरिया बदला है। आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हैं, रोजगार के अनगिनत नए अवसर जो शायद आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आए थे, वो आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। संभावनाएं बढ़ती गई हैं, नए मौके बन रहे हैं। मेरे देश के युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है। मेरा देश का नौजवान इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं करता। मेरा देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है, वो छलांग मार के नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में है। मैं कहना चाहूंगा, भारत के लिए गोल्डन एरा है। वैश्विक परिस्थितियों की तुलना में भी देखें, ये गोल्डन एरा है, ये हमारा स्वर्णिम कालखंड है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये अवसर हमें जाने नहीं देना है, ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए और इसी मौके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर के चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वर्णिम भारत की जो अपेक्षा और हमें विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे। हम सदियों की बेड़ियों को तोड़ करके निकले हैं। आज टूरिज्म का क्षेत्र हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, खेती और किसानी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक नया आधुनिक सिस्टम बन रहा है। हम विश्व की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी आगे देख रखते हुए हम हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। हर सेक्टर में आधुनिकता की जरूरत है, नएपन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है और हर सेक्टर में हमारी नई नीतियों के कारण इन सारे क्षेत्रों में एक नया सपोर्ट मिल रहा है, नई ताकत मिल रही है। हमारे सारे अवरोध हटे, हमारी बंदी से दूर हो, हम पूरे सामर्थ्य के साथ चल पड़े, खिल उठे, सपनों को पा करके रहे, सिद्धि को
हम अपने निकट देखें, हम आत्मसात करें, उस दिशा में हम चलना है। अब आप देखिए कितना बड़ा बदलाव रहा है। मैं एकदम जमीनी स्तर की बात करूं, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप आज 10 साल में हमारे 10 करोड़ बहनें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी है। 10 करोड़ नई बहनें हैं। हमें गर्व हो रहा है कि हमारे सामान्य परिवार की, गांव की 10 करोड़ महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। और जब महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, तब परिवार की निर्णय प्रक्रिया की हिस्सेदार बनती हैं, एक बहुत बड़ी सामाजिक परिवर्तन की गारंटी लेकर के आती है। मुझे गर्व है इस बात पर, लेकिन साथ साथ मुझे गर्व इस बात का भी है कि हमारे सीईओ आज दुनिया भर के अंदर अपनी धाक जमा रहे हैं। भारत के हमारे सीईओ विश्व भर में अपनी धाक जमा रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि एक तरफ मेरे सीईओ दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं, भारत का नाम बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1 करोड़ मेरी सामान्य परिवार की माताएं बहनें लखपति दीदी बनती है। मेरे लिए ये भी उतना ही गर्व की बात है। अब हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए देने का निर्णय किया है। अब तक 9 लाख करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से हमारे इन विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिले हैं, और जिसकी मदद से वो अपने अनेकविध कामों को बढ़ावा रहे हैं। मेरे साथियों, मेरे नौजवान इस तरफ ध्यान दें। स्पेस सेक्टर एक फ्यूचर है हमारे साथ जुड़ा हुआ, एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम उस पर भी बल दे रहे हैं। हमने स्पेस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म किए हैं। जिन बंधनों में हमने स्पेस सेक्टर को बांध के रखा था, उसे हमने खोल दिया है। आज सैकड़ों स्टार्टअप्स स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं। நூற்றுக்கணக்கான वाइब्रेंट बनता जाता हमारा स्पेस सेक्टर। விண்வெளி துறையில் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. भारत விண்வெளி को एक துறையை शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का தனியாருக்கு திறந்து விட்டிருக்கிறோம். இதனால் இளைஞர்களுக்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கின்றன. आज प्राइवेट सैटेलाइट, प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं। ये गर्व की बात है। தனியார் சேட்டலைட்டுகள் இந்த விண்ணில் ஏவப்படுகின்றன. இது மிகவும் கௌரவத்திற்குரிய விஷயம். नीति सही होती है, नियत सही होती है और पूर्ण समर्पण से राष्ट्र का कल्याण यही मंत्र होता है, तो निश्चित परिणाम हम முறை प्राप्त करके சரியாக रहते हैं। இருந்தால் मेरे प्यारे நாம் देशवासियों, சரியான ஒரு आज देश எண்ணத்தோடு में செயல்பட்டால் नए நம்முடைய अवसर बने। பாதை சரியான பாதையாக இருக்கும். तब मैं कह सकता हूं 2 चीजें और हुई जिसने विकास को एक गति दी है, विकास को एक नई छलांग दी है। और ये है, पहला है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर நவீன को आधुनिक உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குதல் என்பது நம்முடைய வளர்ச்சி பாதையின் முதல் கட்டம். और दूसरी तरफ सामान्य मानवीय के जीवन में जो बाधाएं हैं, ईज ऑफ लिविंग का हमारा जो सपना है, उस पर भी हमने उतना ही बल दिया है। पिछले 1 दशक में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास கடந்த हुआ। 10 ஆண்டுகளில் உள்கட்டமைப்பில் பல முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. ரயில் பாதைகள், சாலைகள் போன்றவை உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. गांव गांव नए स्कूल बनाने की बात हो, जंगलों में स्कूल கிராமங்களில் बनाने की बात हो, பள்ளிகள் உருவாக்குதல், दूर காட்டுப் பகுதிகளில் கூட बनाने की बात हो, பள்ளிகள் आरोग्य உருவாக்குதல், मंदिर बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेजों का काम हो, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निर्माण चलता हो, 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने हो, 7000க்கு மேல் அமிர்த் சரோவர்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மருத்துவ கல்லூரிகள், ஆயுஷ்மான் பாரத் மருந்தகங்கள் போன்றவை உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 4 करोड़ पक्के घर बनना, गरीबों को एक नया आश्रय मिलना, 3 करोड़ नए घर बनाने के संकल्प के 3 साथ கோடி आगे बढ़ने की வீடுகள் உருவாக்குவதற்கான இலட்சியத்தோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். नॉर्थ ईस्ट उसका इलाका आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाना लगा है। और हमने ये जो कायाकल्प किया है, उसका सबसे बड़ा लाभ
समाज के उन वर्गों तक हम पहुंचे हैं जब ग्रामीण सड़कें वहां बनी है जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, जिस इलाकों को नहीं देखता था, जिन गांवों को नहीं देखता था। இந்த திட்டங்களின் பயன்கள் தலித்துகள், பின்தங்கிய வகுப்புகள், ஆதிவாசிகள் போன்றவர்களுக்கு சென்று அடையும் வண்ணம் நாங்கள் திட்டங்களை வகுத்திருக்கிறோம். हमने उनकी आवश्यकता की पूर्ति की है. हमारे मछुआरे भाई बहनों की நம்முடைய மீனவர சகோதரர்களுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யும் விதத்திலே செயல்பட்டிருக்கிறோம். विकास का प्रयास हमारी नीतियों में रहा, हमारी नीयत में रहा है, हमारे रिफॉर्म में रहा है, हमारे कार्यक्रमों में रहा है, हमारी कार्यशैली में रहा है. और उस सबसे बड़ा लाभ मेरे युवाओं को होता है. उनको नए नए अवसर मिलते हैं, नए नए क्षेत्र में कदम रखने का उसके लिए संभावनाएं बन जाती है. और वही तो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है. और सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त करने का अवसर इन्हीं समय में उनको मिला. நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு இதற்கான அதிகபட்ச பலன் கிடைத்திருக்கிறது. அதிகபட்சமான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைத்திருக்கின்றன. குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப், மக்களின் வாழ்க்கையை எளிமையானதாக மாற்றுகின்ற முயற்சியில் இது தொடர்கிறது. क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जो उसकी अपेक्षाएं हैं, सरकार की कठिनाइयों से मुक्ति की उसकी जो अपेक्षाएं हैं, उसको पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं. और मैंने तो सपना देखा है कि 2047 जब विकसित भारत का सपना होगा तो उसकी एक इकाई ये भी होगी कि सामान्य मानव के जीवन में सरकार की दखलें कम हो. 2047 ஆண்டில் இந்தியா வளர்ச்சியடைந்த பாரதமாக மாறும்போது சாமானிய மக்களின் வாழ்க்கையில் அரசின் தலையீடு, குறுக்கீடு குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்ற கனவு நான் கண்ட ஒரு கனவாகும். हम छोटी छोटी जरूरतों पर भी ध्यान देते हैं, हम छोटी छोटी आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं और उसको लेकर हम चलते हैं. चाहे हमारे गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब की माँ को कभी आंसू पी करके सोना न पड़े और इसके लिए मुफ्त इलाज. ஏழைகளின் வீட்டிலே அடுப்பு எரியும் போது அந்த தாய்மார்களின் கண்ணிலே கண்ணீர் வரக்கூடாது என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட திட்டம் தான் உஜ்வலா திட்டம். उसको जातिवाद का रंग नहीं लगता है. இந்த திட்டங்களில் ஜாதிவாதம் என்கின்ற அந்த வண்ணம் சேர்க்கப்படுவதில்லை. யார் உண்மையிலேயே ஏழைகளோ அவர்களுக்கு திட்டத்தின் பலன்கள் சென்றடைகின்றன. मंत्र साकार होता है. लोगों के जीवन में सरकार की दखल कम हो, उस दिशा में हमने हजारों कंप्लेंसीज के लिए सरकार மக்களின் வாழ்க்கையில் அரசின் குறுக்கீடுகள் குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆயிரக்கணக்கான புரொசீஜர்களை நாங்கள் நீக்கியிருக்கிறோம். பழைய சட்டங்களை எல்லாம் நாங்கள் முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறோம். हमने छोटी छोटी गलतियों के कारण ऐसे कानून बने थे उनको जेल में धकेल दिया जाए. हमने उन छोटे छोटे कारणों से जेल जाने के जो परंपराएं थी उन सारे சிறு சிறு குற்றங்களுக்காக ஜெயிலுக்கு செல்லும் அந்த சட்டங்களை எல்லாம் நாங்கள் நீக்கி இருக்கிறோம். बाहर कर दिया है. आज हमने जो आजादी की विरासत के गर्व की बात हम जो करते हैं, सदियों से हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ थे, आज हमने उसको नए क्रिमिनल लॉ जिसको हमने न्याय संहिता के रूप में புதிய குற்றவியல் சட்டம் நியாய தரிகா என்பதை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். इस भाव को हमने प्रबल बनाया. பழம்பெரும் சட்ட பிரிவுகளை எல்லாம் நீக்கி இருக்கிறோம். बनाने के लिए देशव्यापी मिशन में काम कर रहे. हर लेवल पर मैं सरकार के प्रतिनिधियों का आह्वान करता हूं. मैं जनप्रतिनिधि, वो किसी भी दल के क्यों न हो, किसी भी राज्य के क्यों न हो, सबसे आग्रह करता हूं कि हमने एक मिशन मोड में ईज ऑफ लिविंग के लिए कदम उठाने நான் நம்முடைய மக்கள் பிரதிநிதிகளை கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவர்கள் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கட்டும், எந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கட்டும், இந்த ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் என்பதை கொண்டு வருவதற்கு நாம் வேகமாக செயல்பட வேண்டும். कि बिना कारण की कठिनाइयां है उसको दूर करने से कोई नुकसान नहीं है. मैं पक्का मानता हूं आज सरकारें संवेदनशील है. हर सरकार, स्थानीय स्वराज्य की संस्था होगी या राज्य सरकार होगी या केंद्र सरकार होगी, उसको तवज्जो देगी. गवर्नेंस में रिफॉर्म्स, ये हमें विकसित भारत 2047 के सपने के लिए हमने उसको जोर लगा करके आगे बढ़ाना होगा, ताकि सामान्य मानवी के जीवन में अवकाश ही अवकाश पैदा हो, रुकावटें खत्म होती चली जाए. नागरिकों का डिग्निटी ऑफ सिटीजन, नागरिकों के जीवन में सम्मान मिले. डिलीवरी के संबंध में
कभी किसी को ये कहने की मोहब्बत ना आया कि ये तो मेरा हक था कि मुझे मिला नहीं, उसको खोजना न पड़े। सरकार के गवर्नेंस में डिलीवरी सिस्टम को और மக்களுக்கு मजबूती चाहिए। சென்றடைய வேண்டிய உரிமை கிடைக்கவில்லை என்று அவர்கள் அந்த உரிமைகளை தேடக்கூடிய நிலைமையில் அவர்கள் இருக்கக்கூடாது. உரிமைகளை அவர்களுக்கு கொண்டு செல்லுகின்ற ஒரு அமைப்பாக அரசு இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களது எண்ணம். नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, यूटी हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, केंद्र, छोटी मोटी 3 लाख करीब करीब इकाइयां हैं। अगर ये हमारे 3 लाख इकाइयों को मैं आज आह्वान करता हूं कि अगर आप साल में अपने स्तर पर जिन चीजों की जरूरत है सामान्य मानव के लिए 2 रिफॉर्म करें। ज्यादा नहीं कह रहा हूं मेरे साथियों, एक पंचायत हो, एक राज्य सरकार हो, பஞ்சாயத்தாக இருக்கட்டும், நகராட்சியாக இருக்கட்டும், மாநகராட்சியாக இருக்கட்டும், மாநிலமாக இருக்கட்டும், நீங்கள் 2 நான் அதிகமாக கேட்கவில்லை, 2 மாற்றங்களை கொண்டு வாங்குங்கள். करीब करीब 25-30 लाख रिफॉर्म कर सकते हैं। जब 25-30 लाख रिफॉर्म हो जाए तब सामान्य मानवी का विश्वास कितना बढ़ जाएगा, उसकी शक्ति राष्ट्र को नई ऊंचाई पर ले जाने में कितनी काम आएगी। और इसलिए हम अपने स्तर पर होती है चलती से मुक्ति पाकर के बदलावों के लिए आगे आए, हिम्मत के साथ आगे आए। और सामान्य मानवी की जरूरत तो छोटी छोटी जरूरत होती है, पंचायत लेवल पर भी वो मुसीबतें झेल रहा है, उन मुसीबतों से हम मुक्ति दिलाएं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम सपनों को पार कर सकते हैं। குறைந்தபட்சம் 2 மாற்றங்களை ஒரு கிராமத்திலே கொண்டு வந்தால் நாடு முழுவதிலும் உள்ள கிராம பஞ்சாயத்துகளில் மொத்த மாற்றம் எண்ணிக்கையில் அடங்காததாக இருக்கும். இது மக்களுக்கு அவருடைய வாழ்க்கையை எளிமையாக்குவதற்காக உள்ள மாற்றமாக இருக்க வேண்டும். नए नए शिखरों पर वो कदम रखना चाहता है और इसलिए हमारी कोशिश है हर सेक्टर में कार्य को हम गति दें, तेज गति दें और उसके द्वारा पहले हम हर सेक्टर में नए अवसर पैदा करें। दूसरा, ये बदलती हुई व्यवस्थाओं के लिए जो सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बदलाव के मजबूती देने की दिशा में काम करें। और तीसरी बात है, नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के विषय में हम प्राथमिकता दें, उसको बल दें। इन तीनों भारत में एक एस्पिरेशनल सोसाइटी का निर्माण किया है और उसके परिणाम स्वरूप அடிப்படை வசதிகள் समाज खुद மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொண்டு வருவதற்கான மாற்றத்தை நாம் செய்ய வேண்டும். இது என்னுடைய 3வது கோரிக்கை. उनके एस्पिरेशंस, हमारे नौजवानों की ऊर्जा हमारे देश के सामर्थ्य के साथ जोड़ करके हम आगे बढ़ने की एक ललक लेकर के चल रहे हैं। मुझे विश्वास है रोजगार और स्वरोजगार नए रिकॉर्ड के अवसर पर हम काम किया है। प्रति व्यक्ति आज आय 2 गुनी करने में हम सफल हुए हैं। ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान बड़ा है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। உலக அளவில் विदेशी मुद्रा भंडार இந்தியாவின் ஏற்றுமதி அதிகரித்திருக்கிறது, தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. ग्लोबल संस्थानों का भारत के प्रति भरोसा बढ़ा, உலக மக்களுக்கு பாரதத்தின் மீது இருக்கின்ற நம்பிக்கை அதிகரித்திருக்கிறது. भारत की दिशा सही है, भारत की गति तेज है और भारत के सपनों में सामर्थ्य है। लेकिन इन सबके साथ संवेदनशीलता का हमारा मार्ग हमारे लिए ऊर्जा में एक नई चेतना भरता है। मम भाव हमारे कार्य की शैली है। समभाव भी चाहिए, मम भाव भी चाहिए। சுயநலமும் வேண்டும், பொதுநலமும் வேண்டும். இந்த எண்ணத்தோடு நாம் செயல்பட வேண்டும். मैं जब कोरोना काल को याद करता हूं, कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच सबसे तेजी से इकोनॉमी को बेहतर बनाने वाला कोई देश है तो वो देश भारत है। கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்திலும் ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வேகமாக முன்னேற்றி வருகின்ற ஒரு நாடு இருக்கிறது என்றால் அது நம்முடைய பாரதம். ऊपर उठकर हर घर तिरंगा फहराया जाता है, तब लगता है
देश की दिशा सही है। இன்று ஒவ்வொரு வீட்டிலும் மூவண்ண கொடி ஏற்றப்படுகிறது. हर घर तिरंगा है, न कोई जात है, न कोई पात है, न இதிலே कोई ஜாதி இல்லை, வேறு மதம் இல்லை, வேறு பிரிவுகள் இல்லை. ஒவ்வொரு வீட்டிலும் மூவர்ண கொடி பறக்கிறது. जब हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालते हैं, 25 கோடி மக்களை तब हमारा विश्वास ஏழ்மை நிலையிலிருந்து நாம் வெளியே கொண்டு வந்திருக்கிறோம். कि हमने गति को बराबर मेंटेन किया है और सपनों को साकार करना दूर नहीं है। जब 100 से अधिक आकांक्षी जिले अपने अपने राज्य के अच्छे जिलों की स्पर्धा कर रहे हैं, बराबरी करने लगे हैं, तो हमें लगता है कि हमारी दिशा और गति दोनों सामर्थ्यवान है। जब हमारे उन आदिवासी साथियों को वो मदद मिलती है, पीएम जनमन के द्वारा उनको जो योजनाएं पहुंची थी, आबादी बहुत छोटी है, लेकिन बहुत दूर सुदूर इलाकों में छुटपुट परिवार रहते हैं, हमने उनको खोज के निकाला है, उनके लिए चिंता की है। நம்முடைய ஆதிவாசி மக்களுக்கு संवेदनशीलता से जब பிரதமரின் ஜன்மன் திட்டத்தின் மூலம் मिलता है, பயன் கிடைக்கும் போது அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். அவர்கள் எண்ணிக்கையில் குறைவு, ஆனால் வெகு தூர பகுதிகளிலே இருக்கிறார்கள். तब नारी का सम्मान ही करते इतना नहीं है, नारी के प्रति संवेदनशील भाव से निर्णय करते इतना नहीं, लेकिन उसके गोद में जो बच्चा पला है ना, उसको एक उत्तम नागरिक बनाने के लिए माँ की जो जरूरत है, उसमें सरकार रुकावट न बने, इस संवेदनशील भावना से பெண்களுக்கு மரியாதை அளிக்கின்ற விஷயத்தில் அவர்களுடைய இடுப்பிலே வளர்கின்ற அந்த குழந்தை ஒரு நல்ல மனிதனாக ஆக வேண்டும் என்றால் அதற்கான வாய்ப்புகளை அவர்களுக்கு உருவாக்கி தருவதில் அரசு முயன்று வருகிறது. सम्मान के भाव से देखता है, और पैरालंपिक में तो हमारे खिलाड़ी नई नई ताकत दिखाने लगे हैं, तब लगता है कि ये जो मेरा मम भाव है, हम सबका मम भाव है, उसकी ताकत नजर आती है। हमारे ट्रांसजेंडर समाज के प्रति हम जिस संवेदना के साथ निर्णय बना रहे हैं, பாரா ஒலிம்பிக்ஸில் நம்முடைய कानून बना रहे हैं, மாற்றுத்திறனாளிகள் பெற்றிருக்கின்ற வெற்றிகள், के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, மூன்றாம் பாலினத்தவர் அடைகின்ற முன்னேற்றம், सेवा भाव से किए गए इन कामों का जो त्रिविध मार्गों से हम चले हुए, इन कामों का एक सीधा सीधा लाभ आज उसके परिणाम के रूप में हमें नजर आ रहा है। சேவை மனப்பான்மையோடு செய்யப்பட்ட இந்த நலத்திட்டங்கள் அனைத்தின் பலன்களும் இப்போது நம் கண்ணிலே தெரிகிறது. तीसरी बार आपने हमें देश सेवा का मौका दिया है. மூன்றாவது முறையாக உங்களுக்கு பணியாற்றுகின்ற அந்த வாய்ப்பினை நீங்கள் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர்கள். जो आशीर्वाद दिए हैं, उस आशीर्वाद में मेरे लिए एक ही संदेश है, जन जन की सेवा. உங்களுடைய அந்த ஆசீர்வாதத்தில் எனக்கு கிடைத்திருக்கின்ற செய்தி என்னவென்றால், மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். और सेवा भाव जन जन सेवा என்பதாகும். समाज की शक्ति को साथ लेकर के विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचना, 2047 विकसित भारत के सपने को लेकर के चलना, उसी एक संदेश 2047 வளர்ச்சி அடைந்த பாரதத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்ற அந்த செய்தியை आशीर्वाद देने के लिए பெற்றுக்கொண்டு நான் பணியாற்றுகிறேன். கோடி கோடி இந்திய மக்களுக்கு நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். उनके प्रति नतमस्तक होता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हमें नई ऊंचाइयों को नए जोश के साथ आगे बढ़ना है. हमें सिर्फ जो हो गया है वो संतोष मान करके बैठने वाले, இதுவரை நடந்தவைகளை கண்டு சந்தோஷம் அடைந்து பணியை நிறுத்தி விடுகின்ற ஆட்கள் அல்ல நாங்கள். மேலும் இலக்குகளை அடைவதற்கான பணிகளை தொடர்ந்து செய்வோம். पार करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं. विकास को, समृद्धि को, सपनों को साकार करने को, संकल्प को लिए जीवन खपाने को हम अपना स्वभाव बनाना चाहते हैं. देशवासियों का இலக்குகளை அடைவதற்கான मेरे प्यारे देशवासियों, எண்ணத்தை எங்களுடைய சுபாவமாக மாற்றிக்கொள்ள விரும்புகிறோம். बहुतेक मात्रा में कई राज्यों ने उसको अच्छा इनिशिएटिव लिए हैं और उसके कारण आज एक 21वीं सदी के अनुरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था को जो
हम बल देना चाहते हैं और विकसित भारत के सपने के लिए जिस प्रकार से मानव समूह तैयार करना चाहते हैं, नई शिक्षा नीति बहुत बड़ी भूमिका अदा है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवानों को अब विदेशों में पढ़ने के लिए मजबूर होना। நம்முடைய நாட்டு இளைஞர்கள் வெளிநாட்டிற்கு சென்று படிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்குள் ஆகக்கூடாது என்பதற்காக பல மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். புதிய கல்விக் கொள்கையை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். करना चाहते हैं कि मेरे देश के नौजवानों को विदेश जाना न पड़े, मेरे मध्यम वर्गीय परिवारों को लाखों करोड़ रुपया खर्च करना न पड़े। इतना ही नहीं, ऐसे संस्थान निर्माण हो ताकि विदेशों से लोग भारत के अंदर मुंह मोड़े। अभी अभी हमने बिहार का हमारा गौरवप्रद इतिहास रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण। இப்போது சிறிது நாட்களுக்கு முன்பு பீகாரில் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை மீண்டும் உருவாக்கி இருக்கிறோம். हमें शिक्षा के क्षेत्र में फिर से एक बार सदियों पुराने उस नालंदा स्पिरिट को जगाना होगा. நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கிய அந்த உணர்வினை நம்முடைய கல்வி துறையிலே உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு நாங்கள் பணிகள் செய்து வருகிறோம். ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा. मुझे पक्का विश्वास है कि नई शिक्षा नीति ने मातृभाषा पर बल दिया है. புதிய கல்விக் கொள்கை தாய்மொழியின் மீது அதிக தாக்கத்தை தந்திருக்கிறது. कि भाषा के कारण हमारे देश की टैलेंट को रुकावट नहीं आनी चाहिए, भाषा अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए. मातृभाषा का सामर्थ्य हमारे देश के छोटे छोटे गरीब से गरीब मां के बेटे को भी सपने पूरा करने का தாய்மொழியில் படிப்பதன் மூலம் தாய்மொழியின் வலிமை சிறு குடும்பங்களில் உள்ளவர் परिवार में मातृभाषा का स्थान மாணவர்களுக்கு கூட செல்ல வேண்டும். होगा. मेरे प्यारे देशवासियों, जिस प्रकार से आज विश्व का बदलाव नजर आ रहा है और तब जाकर के स्किल का महत्व बहुत बढ़ गया है और हम स्किल को और नई एक ताकत देना चाहते हैं. हम इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रख करके हम स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं. हम जीवन के हर क्षेत्र में, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कैपेसिटी बिल्डिंग करके देने के लिए स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं. हम तो हमारा सफाई का क्षेत्र हो उसमें भी एक नए स्किल डेवलपमेंट की ओर बल देना चाहते हैं. और हम स्किल इंडिया प्रोग्राम को बहुत व्यापक रूप से इस बार लेकर के आए हैं. இளைஞர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு बहुत बड़ा வளர்ச்சிக்காக நாங்கள் சிறப்பான கவனம் இப்போது செலுத்தியிருக்கிறோம். இந்த வருட பட்ஜெட்டில் கூட அதற்காக பெருந்தொகையை ஒதுக்கியிருக்கிறோம். उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और बाजार में उनका ताकत दिखाई दे, उस प्रकार से मैं स्किल युवाओं को तैयार करना चाहता हूं. और जैसे कई बार और दोस्तों, आज विश्व की परिस्थिति को देखते हुए मैं साफ साफ देख रहा हूं कि भारत का स्किल्ड मैन पावर जो है, हमारा स्किलफुल जो नौजवान है, वो ग्लोबल जॉब मार्केट में अपनी दमक बनाए. हम उस सपने को लेकर के आगे चलें. உலக வணிகத்தில் மாணவர்களுடைய வேலை வாய்ப்பு அதிகம் பெருக வேண்டும் என்பதற்காக இந்த திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ता चला जाने वाला. हमें साइंस को बहुत बढ़ देने की आवश्यकता है. और मैंने देखा चंद्रयान की सफलता के बाद हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति एक नई रुचि का वातावरण बना है. சந்திரயானின் வெற்றி நம்முடைய பள்ளி கல்லூரிகளில் அறிவியலுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை ஊட்டும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது. आगे आना होगा. भारत सरकार ने भी रिसर्च के लिए सपोर्ट बढ़ा दिया है. हमने ज्यादा से ज्यादा चेयर स्थापित किए हैं. हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना करके हमने उसको एक कानूनी परिवेश में ला करके स्थायी रूप से एक व्यवस्था विकसित की है ताकि रिसर्च को लेकर के निरंतर बल मिले और ये रिसर्च फाउंडेशन उस काम को करे. அறிவியல் துறையில் ஆராய்ச்சிகளை மேம்படுத்துவதற்காக நான் தேசிய ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு ஆணையத்தை உருவாக்கி இருக்கிறோம். हमने देने का निर्णय किया है ताकि
हमारे देश के नौजवान के पास जो आइडियाज है उस आइडियाज को हम जमीन पर उतार पाए। साथियों, आज भी हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। वैसा कहा मैंने, बहुत ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार के, उनके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। மருத்துவ படிப்பிற்காக நம்முடைய மாணவர்கள் பலர் வெளிநாடுகளுக்கு செல்கிறார்கள். இதற்கு ஏராளமாக செலவாகிறது. मेडिकल सीटों को करीब करीब 1 लाख कर दिया. மருத்துவ படிப்புக்கான அந்த இடங்களை 1 லட்சம் அளவிற்கு உயர்த்தி இருக்கிறோம். करीब करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है. कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं. அவர்கள் செல்லுகின்ற பல நாடுகள் कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में அமைதி இழந்து தவிக்கின்றன. नई सीटें बनाई जाए. அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் மருத்துவ இடங்கள் இன்னும் அதிகரிக்கப்படும். विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए. வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் 2047 என்பது ஆரோக்கியமான பாரதமாகவும் இருக்க வேண்டும். ध्यान देने की जरूरत है और इसलिए हमने विकसित भारत की जो पहली पीढ़ी है उनकी तरफ विशेष ध्यान दे करके हमने पोषण का एक अभियान चला है. हमने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है. पोषण को हमने प्राथमिकता दी है. मेरे प्यारे देशवासियों, அந்த வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தின் முதல் தலைமுறை ஆரோக்கியமானவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆரோக்கியமான உணவு திட்டம் என்ற ஒரு திட்டத்தை நாங்கள் தொடங்கி இருக்கிறோம். परंपरा में दबे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उससे मुक्ति पानी होगी और हमारे किसानों को उसके लिए हम मदद भी दे रहे हैं. हम उसको ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में लगातार काम करते आए हैं. आज आसान ऋण दे रहे हैं किसानों को, टेक्नोलॉजी की मदद दे रहे हैं. किसान जो पैदावार करता है उसको वैल्यू एडिशन के लिए हम काम कर रहे हैं. उसके लिए मार्केटिंग के लिए पूरा प्रबंध करते हैं ताकि उसको एंड टू एंड हर जगह पे हैंड होल्डिंग की व्यवस्था हो. उस दिशा में हम काम कर रहे हैं. आज जब धरती माता के प्रति सारा विश्व चिंतित है, जिस प्रकार से उर्वरक के कारण हमारी धरती माता की शहद दिनों दिन बिगड़ता जा रही है, हमारी धरती माता की उत्पादकता क्षमता खत्म होती விவசாயிகளுக்கு தேவையான பல திட்டங்களை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். उस समय मैं मेरे देश அவர்களுக்கு விற்பனை செய்வதற்கான மார்க்கெட்டிங், जिन्होंने प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना है, நிலம் और हमारी धरती माता की सेवा करने का भी उन्होंने बीड़ा उठाया है. और इस बार बजट में भी हमने வேதியியல் உரங்களால் மாசுபடாமல் இருப்பதற்காக இயற்கை விவசாயத்தை நாங்கள் ஊக்குவித்து வருகிறோம். मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया की स्थिति में देखता हूं पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मुड़ रहा है और तब उनको ऑर्गेनिक फूड ये उनकी प्रथम पसंद बनी है. आज विश्व के लिए ऑर्गेनिक फूड का अगर कोई फूड बास्केट बन सकता है तो मेरे देश உலகம் முழுவதும் ஆர்கானிக் ஃபுட் என்ற அந்த ஆர்கானிக் உணவுகளை உண்பதில் மக்களுக்கு ஆர்வம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. உலகத்திலேயே ஆர்கானிக் உணவுகளின் ஒரு விற்பனை மையமாக ஒரு நாடு விளங்க முடியும் என்றால் அது நம்முடைய பாரதம் தான். हमारा देश कैसे बने, किसानों का जीवन आसान बने, गांव में टॉप क्लास इंटरनेट कनेक्टिविटी, கிராமங்களில் உயர்தர இணைய சேவை தருவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்திருக்கிறோம். पढ़ने के लिए स्मार्ट स्कूल अवेलेबल हो, किसान के बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो, விவசாயியின் மகன்களுக்கு சிறப்பான கல்வி கிடைக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு சிறப்பான வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கிறோம். मिले ताकि उनके नए रोजगार मिले, नए आय के साधन बने. इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास हम कर रहे हैं. बीते वर्षों में वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर हमने काम किया है. इनोवेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं. महिलाएं सिर्फ भागीदारी बढ़ा रही है ऐसा नहीं, महिलाएं नेतृत्व दे रही है.
பெண்களுக்கான பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறோம். அவர்களை பங்குதாரர்களாக அல்ல, தலைமை ஏற்பவர்களாக மாற்றி இருக்கிறோம். हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख கடற்படை, விமானப்படை, ராணுவம், விண்வெளித்துறை ஆகியவற்றில் பெண்கள் மகத்தான பணி புரிந்து வருவதை நாம் பார்க்கிறோம். फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं. एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है. इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं. इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा. பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளுக்கு எதிராக நம்முடைய சமூகம், அரசுகள் अपराधों की ஒரு தீவிரமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है. मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है. लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है. अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को பெண்கள் डर மீது पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है பலாத்கார कि फांसी पर लटकना पड़ता है. கொடுமை நிகழும்போது அதை डर पैदा करना बहुत ஊடகங்கள் மிக அதிகமாக விவாதிக்கின்றன. ஆனால் அவ்வாறு செய்தவருக்கு தண்டனை வழங்கப்படும் போது அது பத்திரிகைகள் ஒரு மூலையில் வருகின்ற செய்தியாகி விடுகிறது. இவற்றையும் ஊடகங்கள் விவாதிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் இவ்வாறு செய்பவர்கள் தண்டனைக்கு பயந்தாவது தங்களுடைய நடவடிக்கைகளை குறைத்துக் கொள்வார்கள். और हम तो कभी कभी तो लेट आए तो कहते थे इंडियन राइट, शर्म के साथ हम बोल देते थे. देश को इन चीजों से हमने बाहर लाने में सफलता पाई है. किसी जमाने में कहा जाता अरे खिलौने भी बाहर से आते थे, वो दिन देखे हमने. आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे देश के खिलौने दुनिया के बाजार में अपनी இன்று நம் நாட்டின் பொம்மைகள் உலக சந்தையிலே விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. हमारे एक्सपोर्ट होने शुरू हुए. तो एक जमाना था हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे. आज मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बना है, एक बहुत बड़ा हब बना है. और आज ஒரு காலத்தில் फोन दुनिया में செல்போன்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டன. இப்போது இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. आधुनिक टेक्नोलॉजी जुड़ी है, एआई जुड़ा हुआ है. हमने सेमीकंडक्टर मिशन पर काम शुरू किया. செமிகண்டக்டர் மிஷன் என்பதன் மீது நாங்கள் நம்முடைய பணிகளை தொடங்கி இருக்கிறோம். क्यों ये सपना मेरे देश का नौजवान देखे. टैलेंट यहाँ है, सारे इस प्रकार के रिसर्च काम हिंदुस्तान में होते हैं, तो प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में होगा. செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி இந்தியாவிலேயே தொடங்கும். एंड टू एंड सॉल्यूशन दुनिया को देने की ताकत रखते हैं और हम उसको साथियों एक जमाना हमने देखा है 2G के लिए हम कैसा संघर्ष करते थे. आज हर उपकरण में हम देख रहे हैं हम तेजी से आगे बढ़े. और 5G जिस तेजी से पूरे देश में रोल आउट हुआ, हिंदुस्तान के करीब करीब सभी क्षेत्रों में 2G அலைக்கற்றையை பெறுவதற்கு நாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் என்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். ஆனால் இன்று மிக வேகமாக 5G இந்தியாவில் பரவி இருக்கிறது. ஆனால் 5Gயோடு நாம் நின்றுவிடப் போவதில்லை. 6G மீது மிஷன் மோடில் நாம் பணியாற்றி வருகிறோம். अपनी धमक जमाएंगे, ये मैं विश्वास से कहता हूं. मेरे प्यारे साथियों, डिफेंस सेक्टर हमारी आदत हो गई थी. डिफेंस बजट कितना ही क्यों न हो, लेकिन कभी को सोचता नहीं था कि डिफेंस बजट बढ़ा तो जाता कहां है. डिफेंस बजट विदेशों से खरीदी में चला जाता था.
अब हम चाहते हैं हम आत्मनिर्भर இராணுவத்தினுடைய பட்ஜெட் தொகை அதிகரிக்கும் போதெல்லாம் அந்த பணம் வெளிநாடுகளுக்கு ஆயுதங்கள் வாங்குவதற்காக சென்று கொண்டிருந்தது. இப்போது நாங்கள் அதை மாற்றி हम विदेश से नहीं இராணுவத்திற்கான ஆயுதங்களை இந்தியாவிலேயே உற்பத்தி செய்கிற நிலைமையை உருவாக்கி இருக்கிறோம். जवानों ने दिखाया है और उसके कारण डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे இதனால் हैं. சுயசார்புடையவர்களாக இராணுவ துறையிலே நாம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம். भारत की पहचान बनी है और मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस की हर छोटी मोटी चीज बाहर से लाता था आज धीरे धीरे சின்ன சின்ன பொருட்களை கூட வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நாடு இப்போது சுயசார்பு அடைந்திருக்கிறது என்பது எவ்வளவு பெருமைக்குரிய விஷயம். मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम धीरे धीरे उभर रहे हैं. हम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि रोजगार के लिए सर्वाधिक आवश्यक है. आज पीएलआई स्कीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है. एफडीआई रिफॉर्म्स उसने भी हमें बहुत बड़ी ताकत दी है. एमएसएमईज को बहुत बड़ा बल मिला है. नई व्यवस्थाएं विकसित हुई है और उसके कारण हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने. நம்முடைய உற்பத்தி துறை உலகத்தின் ஒரு மையமாக மாறுவதற்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் செய்து தரப்பட்டிருக்கிறது. हम बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे जाना चाहते हैं और इसके लिए आवश्यक स्किल डेवलपमेंट उस पर भी हमने बल दिया है और स्किल डेवलपमेंट में भी हमने नए मॉडल तय किए हैं. हमने जन भागीदारी को जोड़ा है ताकि तुरंत रिक्वायरमेंट के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हम कर सके. और मुझे विश्वास है, मैं लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, वो दिन दूर नहीं होगा जो भारत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा. दुनिया उसकी तरफ देखती होगी. आज विश्व की बहुत बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं. ये चुनाव के बाद मैंने देखा, मेरे तीसरे कार्यकाल में जितने लोग मुझसे मिलने के लिए मांग कर रहे हैं वो ज्यादातर निवेशक लोग हैं. विश्व भर के निवेशक हैं. वो आना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं. ये एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि आप निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित कीजिए. गुड गवर्नेंस का आश्वासन दीजिए. लॉ एंड ऑर्डर இன்று सिचुएशन के लिए உலகின் उनको பல்வேறு भरोसा दीजिए. முதலீட்டாளர்கள் இந்தியாவிலே தொழில் தொடங்க ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள். மூன்றாவது முறை தேர்ந்தெடுத்த பிறகு என்னை சந்திக்க வருபவர்களில் स्पर्धा होनी चाहिए. பெரும்பாலானோர் இந்த முதலீட்டாளர்கள். நான் மாநில அரசுகளுக்கு ஒரு கோரிக்கை விடுக்கிறேன். இத்தகைய முதலீட்டாளர்கள் உங்கள் மாநிலத்திலே வந்து முதலீடு செய்வதற்கு வசதியாக நீங்கள் நடைமுறைகளை எளிமையாக்குங்கள். रिक्वायरमेंट के अनुसार नीतियों को राज्यों ने परिवर्तित करना चाहिए. लैंड की आवश्यकता है तो राज्यों ने लैंड बैंक बनानी चाहिए. गुड गवर्नेंस सिंगल पॉइंट पर काम करने के लिए राज्य जितने प्रोएक्टिव होंगे, जितने ज्यादा प्रयास करेंगे, जो निवेशक आ रहे हैं वो कभी भी वापस नहीं जाएंगे. सिर्फ भारत सरकार से काम ये होता नहीं है. राज्य सरकारों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है क्योंकि இந்திய அரசினால் செய்ய வேண்டிய காரியம் மட்டுமல்ல, இது மாநில அரசுகளும் முனைந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை. और इसलिए मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि जब विश्व पूरा भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है, विश्व पूरा भारत में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है, तब ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारी உலக முதலீட்டாளர்கள் நம்முடைய நாட்டிற்கு முதலீடுகளை கொண்டு வர விரும்பும் போது நம்முடைய கடமை அவர்களுக்கு தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுப்பதுதான். और आपका राज्य भी चमक उठेगा. அவ்வாறு செய்தால் உங்களுடைய மாநில அரசும் साथियों, ஒளி வீசி பிரகாசிக்கும். अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए पहचानी जाए, ये बहुत जरूरी है. अब विश्व के लिए हमें डिजाइन ऑफ इंडिया का क्षेत्र, डिजाइन इन इंडिया, इस पर हमने बल देना है. हमें कोशिश करनी है अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए. इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब நாம் हमारी हर चीज இந்த को சமயத்தில் தரமான सहजता से பொருட்களை माहौल लग உற்பத்தி செய்ய जाएगा. வேண்டும். और ये हमारे நம்முடைய production की இந்திய quality தரம் पर निर्भर என்பது करेगा. हमारी பன்னாட்டு सेवा की quality पर தரத்திற்கு निर्भर உயர करेगा. வேண்டும். हमारे approach இந்திய की தரம் quality पर பன்னாட்டு निर्भर தரமாக करेगा. இருக்க और வேண்டும். इसलिए हमें क्वालिटी पर बल देकर के आगे बढ़ना है. हमारे पास टैलेंट है. डिजाइन के क्षेत्र में हम दुनिया को बहुत कुछ नया दे सकते हैं. डिजाइन इन इंडिया
इस आह्वान को लेकर के हमें अब आगे चलना है। डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड इस सपने को டிசைன் இன் लेकर के இந்தியா चलना है। டிசைன் ஃபார் த வேர்ல்ட் என்கின்ற முழக்கத்தோடு நாம் டிசைனிங் உலகத்தை இந்தியாவிலிருந்து உலகிற்கு தர வேண்டும்। गेमिंग की दुनिया पर प्रभाव खास करके उन खेलों को बनाने वाले लोग, प्रोडक्ट करने वाले लोग, विदेशी कमाई होती। भारत के पास बहुत बड़ी विरासत है। हम गेमिंग की दुनिया में बहुत नई टैलेंट को लेकर के आ सकते हैं। विश्व के हर बच्चे को हमारे देश के बनी हुई गेमिंग की ओर आकर्षित कर सकते हैं। मैं உலகில் चाहता हूं உள்ள மக்களுக்கு நம் நாட்டிலே தயாரான भारत के नौजवान, கணினி வழி விளையாட்டுகளை கொண்டு செல்ல முடியும்। भारत के एआई के प्रोफेशनल्स वे गेमिंग की दुनिया को लीड करें। खेलने में नहीं, गेमिंग की दुनिया में हमारे प्रोडक्ट पूरे विश्व में पहुंचने चाहिए और पूरी दुनिया में இந்த கணினி வழி விளையாட்டுகளில் நம்முடைய एनिमेशन की दुनिया में हम உற்பத்திகள் अपनी दाग जमा सकते हैं। சென்றடைய வேண்டும்। दिशा में काम करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आज विश्व के अंदर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हर क्षेत्र में चिंता और चर्चा का विषय இன்று रहता है। உலக அளவில் புவி வெப்பமயமாதல் காலநிலை மாற்றம் பற்றிய பேச்சுக்கள் அதிகமாக अब உள்ளன। विश्व को आश्वस्त करते रहे हैं और शब्दों से नहीं, अपने कार्यों से, प्राप्त परिणामों से हमने विश्व को आश्वस्त भी किया है और विश्व को आश्चर्यचकित भी किया। நம்முடைய செயல்பாடுகளின் மூலமாக நம்முடைய வார்த்தைகளின் மூலமாக அல்ல, நாம் உலகத்தை ஆச்சரியப்பட வைத்திருக்கிறோம்। हमने रिन्यूएबल एनर्जी पर विस्तार किया है। हमने रिन्यूएबल एनर्जी को एक नई ताकत दी है। आने वाले कुछ वर्षों में हम नेट जीरो फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। மாற்று எரிசக்தி உருவாக்குவதற்கான அனைத்து பணிகளையும் நாம் மேற்கொண்டிருக்கிறோம்। मैं जिन देशों ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, आज मैं लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों की ताकत दुनिया को बताना चाहता हूं। G20 देश के समूह जो नहीं कर पाए वो मेरे देश के नागरिकों ने कर दिया। நான் இந்த செங்கோட்டையின் கொத்தளத்திலிருந்து உலகிற்கு என் நாட்டு மக்களின் சாமர்த்தியத்தை பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன்। पेरिस अकॉर्ड के अंदर G20 நாடுகளின் சமூகம் செய்ய முடியாததை எங்களுடைய நாடு செய்திருக்கிறது என்பதை சொல்ல விரும்புகிறேன்। G20 देशों के समूह में अगर कोई है तो एकमात्र मेरा हिंदुस्तान। மாற்று எரிசக்தி துறையில் இலக்கினை அடைந்த நாடுகளில் G20 சமூகத்தில் ஒரே ஒரு நாடு இந்தியா தான்। रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट हमने पूरे कर। हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक ले जाने के लिए मकसद से काम कर। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष्य है। दुनिया के लोग सिर्फ 500 गीगावाट शब्द सुनते हैं ना तो मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखते हैं, लेकिन आज मैं विश्वास से कह रहा हूं देशवासियों को, इस लक्ष्य को भी हम पूरा करके रहेंगे और ये मानव जाति की भी सेवा करेगा, हमारे भविष्य की भी सेवा करेगा, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बनेगा। हमने 2030 तक हमारे रेलवे को नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। நம்முடைய ரயில்வே துறை आज जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना उसको एक नई ताकत देने वाली है। நெட் ஜீரோ और ये எமிஷன் बदलाव का என்ற फल இலக்கினை अடைவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறது। करके मेरे मध्यम वर्ग को मिलेगा जब उसका बिजली का मुक्त हो जाए, बिल मुक्त हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल उसकी मांग बढ़ती जा रही है। जब पीएम सूर्यघर योजना से वो बिजली उत्पादन करता है, மின்சார வாகனங்களின் தேவையும் व्हीकल का प्रवास का அதிகரித்து खर्चा வருகிறது। भी वो कम कर सकता है। साथ ही பிரதமரின் ग्रीन हाइड्रोजन मिशन சூரியகர் திட்டம் एक ग्लोबल हब बनना चाहता है। மக்களிடையே बहुत तेजी से नीतियां बनाई गई, ஆதரவை பெற்று வருகிறது। तेजी से उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम हो रहा है और भारत ग्रीन हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी की दिशा में हम जाना चाहते हैं। और ये सारे जो प्रयास चल रहे हैं, क्लाइमेट की चिंता तो है ही है, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, लेकिन इसके अंदर ग्रीन जॉब्स की बहुत बड़ी संभावना है और इसलिए आने वाले कालखंड में ग्रीन जॉब्स का महत्व बढ़ता है। तो उसको सबसे पहले कैप्चर करने के लिए मेरे देश के नौजवानों को अवसर देने के लिए और ग्रीन जॉब्स के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारे साथ इस तिरंगे झंडे के नीचे वो नौजवान बैठे हैं जिन्होंने ओलंपिक की दुनिया में
भारत का परचम இன்று लहराया। நம்முடைய மூவண்ண கொடியை கையிலே வைத்துக் கொண்டு அமர்ந்திருக்கின்ற நம்முடைய இளைஞர்கள் हमारे देश के सभी ஒலிம்பிக்கில் खिलाड़ियों को நம்முடைய நாட்டின் திறமையை 140 காண்பித்து करोड़ வந்தவர்கள். देशवासियों की तरफ से बधाई देता நான் हूं। அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். नए सपने, नए संकल्प, अत्यंतिक पुरुषार्थ के साथ नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। आने वाले कुछ दिनों में भारत की एक बहुत बड़ा दस्ता पैरालंपिक के लिए पेरिस जाने के लिए रवाना होगा। வருகின்ற நாட்களில் पैरालंपिक இந்தியாவிலிருந்து ஒரு பெரிய குழு பாரா ஒலிம்பிக்ஸில் கலந்து கொள்வதற்காக பாரிஸ் செல்லவில் இருக்கிறது. भारत ने G20 को ऑर्गेनाइज किया, हिंदुस्तान के अनेक शहरों में ऑर्गेनाइज किया, 200 से ज्यादा इवेंट किए। पूरे विश्व में G20 का इतना बड़ा व्याप, इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ, इस बार हुआ। इसने एक बात सिद्ध कर दी है कि भारत में बड़े से बड़े काम, कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की ताकत है। G20க்காக இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு நகரங்களில் பல நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. இதன் மூலம் இந்தியா மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்கான திறமை கொண்டுள்ளது என்பது உலகிற்கு தெரிய வந்துள்ளது. 36 में जो ओलंपिक होगा वो मेरे हिंदुस्तान की धरती पर हो। 2030 ஒலிம்பிக் நடக்கும்போது அது இந்தியாவின் उसके लिए हम आगे बढ़े। இந்த நிலத்திலே நடக்கும் என்பதை பெருமையோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். साथियों, समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं, ये हमारा सामाजिक दायित्व है। अगर कोई पीछे रह जाते हैं तो हमारी आगे बढ़ने की गति कम कर देते। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। हम संकल्पों की पूर्ति के लिए 140 करोड़ देशवासियों का भाग्य बदलने के लिए, भाग्य सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्र के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हर நாங்கள் தளர்வடைய மாட்டோம், நடையிலே தளர மாட்டோம், செயலிலே जीतेंगे, ये मैं विश्वास देता हूं। சிறப்பானவர்களாக இருப்போம். समाज की मनोरचना में भी बदलाव कभी कभी बहुत बड़ी चुनौती का कारण बन जाता है। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया। நம்முடைய நாட்டு மக்களின் மன வலிமையை ஊழல் என்பது உடைத்திருக்கிறது. प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है, और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना தேசத்தை விட பெரிய விஷயம் எனக்கு எதுவும் இல்லை. அந்த கனவோடு, நாட்டை பற்றிய கனவோடு தான் நான் வாழ்கிறேன். तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई, ஊழல்வாதிகள் மீது நடவடிக்கை தொடர்ந்து எடுக்கப்படும். करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है, उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई, भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं। நம்முடைய நாட்டிலே भ्रष्टाचार का அரசியல் சட்டம் என்கின்ற ஒரு அருமையான அரசியல் சட்டம் இருக்கின்ற இந்த நாட்டிலே மக்கள் ஊழல்வாதிகளை பெருமைப்படுத்தும் வண்ணம் செயல்பட்டு வருகிறார்கள். भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी இவ்வாறு ஊழல்வாதிகளை பெருமைப்படுத்தும் விஷயம் ஒரு நல்ல சமுதாயத்திற்கு அழகானதல்ல. समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है
उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है। ஊழல்வாதிகளை நீங்கள் பாராட்டினீர்கள் புகழ்ந்தீர்கள் என்றால் இதுவரை ஊழல் செய்யாதவர்கள் கூட மேலும் ஊழல் செய்வதற்கு ஒரு बांग्लादेश में जो कुछ हुआ உற்சாகம் है தரும் விதமாக மாறிவிடும். उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। நமது அண்டை நாட்டிலே ஏற்பட்டிருக்கின்ற அமைதியற்ற சூழலை நான் அறிகிறேன். 140 கோடி இந்தியர்கள் அந்த நாட்டிலே कि हमारे पड़ोसी சிறுபான்மையினராக இருக்கும் இந்துக்களுக்கு ஏற்படும் தொல்லைகளை பற்றி அறிந்திருக்கிறார்கள். அங்கே शांति के प्रति அமைதி हमारा कमिटमेंट है। விரைவில் திரும்பும் என்று நான் விரும்புகிறேன். हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संविधान को 75 वर्ष हो रहे हैं। भारत के संविधान के 75 वर्ष की यात्रा देश को एक बनाना, देश को श्रेष्ठ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत के लोग நம்முடைய அரசியல் சட்டம் 75 ஆண்டுகளை பூர்த்தி செய்கிறது. இந்த அரசியல் சட்டம் ஒரே பாரதம் முன்னர பாரதம் என்கின்ற அந்த கருத்தினை கொண்டு வந்திருக்கிறது. सुरक्षा देने का बहुत बड़ा काम हमारे संविधान ने किया है। अब जब संविधान के 75 वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, तब हम देशवासियों ने संविधान में निर्दिष्ट कर्तव्य के भाव पर बल देना बहुत जरूरी है। और जब मैं कर्तव्य की बात करता हूं, तब मैं सिर्फ नागरिकों पर बोझ बनाना नहीं चाहता। कर्तव्य केंद्र सरकार के भी है, कर्तव्य केंद्र सरकार के हर मुलाजिम के भी है, कर्तव्य राज्य सरकारों के भी है, राज्य सरकार के हर मुलाजिम के है, कर्तव्य हर स्थानीय स्वराज संस्था के हैं, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, तहसील हो, जिला हो, हर किसी के कर्तव्य है। लेकिन साथ साथ 140 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य है। अगर हम सब मिल करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तो हम अपने आप औरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए निमित्त बनेंगे। और जब कर्तव्य का पालन होता है, तब अधिकारों की நாம் रक्षा இந்த 75வது ஆண்டு அரசியல் சட்ட से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ जाती। நினைவை கொண்டாடும் போது நம்முடைய கடமைகள் என்றால் ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமை மட்டுமல்ல, மத்திய அரசின் கடமை, மாநில அரசின் கடமை, உள்ளூர் ஆட்சி அமைப்புகளின் கடமை என ஒவ்வொருவரும் தங்கள் கடமைகளை செய்ய வேண்டும்.